Hi, good evening, everyone. Hi, welcome to the webinar. Hello, Dr. Bipul. Good evening. Hi, Manuji. Good evening. Welcome to the webinar. Hi, Argaji. We'll wait for another 2 to 3 minutes for all the participants to join, and then we will start with the webinar. So today's webinar is slightly different. We have a special guest with us here who is going to be talking about his entire journey. So we'll wait for another minute and then we can start. Welcome, Dhanashree ji. Meanwhile, we have IBS community. You all can join to the community to get recent updates. And in between the webinar, if you have any questions, you can drop it in the chat box and I will be happy to address them. We have a special guest with us today who is going to be talking about his IBS journey. Hello, Taranpreet ji. Good evening. In case of any query, any questions that you have, please drop it in the chat box. We'll take it towards the end. So to start with, we have a very interesting person with us today on the webinar. He is a 27-year-old student. He's from West Bengal, and his name is Mr. Arka Pal. He has been fighting IBS and pushing it ahead day by day by just following the plan and the wellness part, and he's been doing great. So to talk about him, he was diagnosed with stomach ulcers, had bloating, gas, and his major symptom was IBS-M, that is IBS mixed, wherein diarrhea and constipation is alternate. Okay. He used to take IBS medicines to clear his stools, and he has no other comorbidities. If you talk about physical activity, you know how important it is to have a physical activity and a routine when for a active lifestyle, right? So he was somebody who had a sedentary lifestyle and he's a non-vegetarian. He had faced weight loss in between and incomplete evacuation, because of which he had a fear of socialization, severe stress, anxiety, and a lot of and I understand that eating out with friends and family is something that we all look forward for, but that is something, IBS is something which gives us a fear wherein is it okay to eat out or is it not okay. So something similar was happening with our patient here. However, he was able to follow everything thoroughly and whatever was given to him, because of which his IBS score went from 64 to 86, and that's commendable. And approximately 90% of his symptoms are now improved, and his stool clarity, consistency, and frequency has also improved a lot. He's in his sustenance phase, and he's able to manage his triggers. But before I give you all the information, let us talk to our patient and let us ask him, Mr. Arkapal, kaise hain aap? I'm very fine, ma'am. Currently, I'm doing well, actually. Great. And I want to thank you for this opportunity to share my experiences over the period. So, thank you so much. थैंक यू सो मच, जो आपका डेडिकेशन एंड व्हाट यू बीन थ्रू द एंटायर जर्नी इतना एक्साइटिंग है कि वी हैड टू गेट यू ऑन द वेबिनार, एंड बाकी सबको ये बताना जरूरी था. सो वेलकम टू द Uh, वेबिनार.
टू थैंक यू स्टार्ट मैम। विथ आप ये बताइए कि हाउ डिड यू कम अक्रॉस द ऐप, आपको कैसे पता चला कि डेली ब्लूम करके ऐप है जो आईबीएस के लिए केटर करता है? Okay, I visited Hyderabad AIG before October 2024 for my treatment. Then they suggested me this app. So when I don't know about it because I don't have any idea about this app. But when I know about this app, then I just took the course, not course that this go through process. I when I went to this process, I think मेरे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो ऐप के थ्रू मुझे मिला है, आई थिंक आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। क्योंकि मतलब क्या बताऊं मैं, मतलब जो भी मैं बताऊं वो कम ही है मेरे लिए, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस मेरा था बिलो, मतलब हर टाइम मुझे लगता था कि जैसे कि आपने पहले भी कहा कि सोशल एजेंट की फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ बाहर जाना, खाना पीना, मस्ती वगैरह करना, ये सब मुझे एक लगता था कि मेरे लिए चैलेंज है। तो जब मैं इस ऐप के थ्रू आया, हैदराबाद एआईजी के थ्रू मुझे इस ऐप के बारे में पता चला, मैं ज्वाइन किया, और उसके बाद जो मुझे दोनों कोचेस मिला है, आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है हर चीज में। मेरा फूड हो गया, मेरा वेलनेस जो मतलब एंजाइटी वगैरह हो गया, हर चीज में मुझे बहुत हेल्प मिला है उन लोगों से। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। दैट्स सो गुड टू हियर कि जो कोचेस हैं, ये जो ऐप है वाज वेरी हेल्पफुल टू यू। टू स्टार्ट विथ, अभी ये बताइए कि आईबीएस आपको ये जब हुआ था तब आपके सिम्टम्स जो थे, इनकी सिवियरिटी जो थी, ये कैसी थी एंड हाउ डिड इट अफेक्ट योर डेली लाइफ? मतलब आपका वर्क हो, सोशल लाइफ हो, मेंटली हो, तो ये किस तरीके से आपको अफेक्ट किया था तब? See, first of all, I don't know about the term IBS, that is irritable bowel syndrome, because this is, I think many people in India are suffering from this symptom. They don't know about this term, but actually this is symptom. In my case, I used to go toilet, I think 4 to 5 times. Sometimes I had experienced loose motion. So this type of things were happening to me, and I was like, मतलब कुछ भी खाऊं उसके पहले मुझे सोचना पड़ता था कि एक खाऊं या ना खाऊं, क्योंकि हर चीज में रुकावट आता था कि यार। और उसके साथ क्या होता है कि एंजाइटी लेवल, क्योंकि वी हैव टू हेल्थ, वन इज मेंटल हेल्थ एंड अदर इज फिजिकल हेल्थ। अगर आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो आपका फिजिकल हेल्थ भी खराब रहेगा, फिजिकल हेल्थ अगर खराब है तो मेंटल हेल्थ भी खराब रहेगा। तो क्योंकि मुझे आईबीएस, जब मुझे पता चला कि मेरे प्रॉब्लम है आईबीएस, जो कि पहले मुझे पता चला था, मैं जहाँ पे रहता हूँ होम टाउन में, वहाँ वहाँ पर मैं एक डॉक्टर को दिखाया था, तो वहां से मुझे पता चला कि आईबीएस है। पर वो सही नहीं हो रहा था, उसके बाद मुझे अल्सर भी मुझे मिला, तो वेट लॉस हो रहा था। तो पूरा अगर मैं सबको मिलाऊं तो मुझे लगता है कि एंजाइटी लेवल वाज वेरी हाई। एंड इन current situation I am too much, I think I'm so confident about anything. I don't need to fear about which I think I need to eat or not. Yes, I need to avoid which are not good for me. But I think मैम ने जो मुझे ऑप्शंस दिया है, दे आर इनफ फॉर मी, बिकॉज मुझे अभी क्या है कि इतना दिन के बाद मुझे लगता है कि हाँ, आपको सिर्फ एक चीज पता होना चाहिए कि हाउ मच एंड हाउ मच यू नीड टू ईट एंड व्हाट फूड यू नीड टू ईट। अगर आपको पता हो जाता है ये, और ये कोचेस के थ्रू पता चलता है, जब कोचेस ने आपको हेल्प किया तब आपको पता चल ही जाएगा कि क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना पोर्शन के साथ खाना है। तो मुझे लगता है कि इस सब ने मुझे बहुत हेल्प किया है। और आईबीएस के बारे में बेसिकली नॉलेज नहीं है, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन एजुकेशन इज द मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट थिंग। क्योंकि हम लोग कभी कभी इसको ठीक तरह से समझते ही नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग के साथ होता रहता है, हम लोग उसको जस्ट यूं ही छोड़ देते हैं, क्या चलो यार वेरी क्या ट्रू। है, या हम्म। तो जस्ट हम लोग छोड़ देते हैं उस चीज को। पर मुझे लगता है कि यू नीड टू केयर अबाउट योर हेल्थ, योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। यू नीड टू डू सम काइंड एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, yoga, or you can do push-ups, you can do pull-ups, you can go for run, or you can go for walking, evening or morning walk. You can do whatever you want, but any kind of physical activity is very important in present days, because we are living in
this era where you need to do some physical work because आपको सिर्फ क्योंकि हम लोग बहुत एक टाइट शेड्यूल में रहते हैं, बैठे Right. बैठे काम करना वगैरह, जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, तो आई नीड टू सिट आई थिंक 4 to 5 hours constantly in front of laptop, in front of mobile. तो आई नीड टू डू सम फिजिकल वर्क, क्योंकि जब आप फिजिकल कुछ एक्टिविटी करते हो तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से आपका आपको रिफ्रेश फील होता है। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, पहले आपको आपका चेकअप कराना चाहिए, आप पता होना चाहिए कि आपके आपका प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि मेरे को तो आईबीएस है, तो आईबीएस क्या है बेसिकली ये जानना बहुत जरूरी है, और किस टाइप का आईबीएस है। जैसे कि आपने Right. बताया मेरा मिक्स्ड आईबीएस है, तो Hmm. मुझे तो पता ही नहीं था कि मिक्स्ड आईबीएस होता क्या है, तब मुझे पता चला, तो उसके हिसाब से मैंने काम किया। तो जी, तो आपको आप जो बोल रहे हैं दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज काफी लोग जो हैं इन इंडिया उनको फॉर्मल डायग्नोसिस नहीं है आईबीएस का, क्योंकि जनरली ब्लोटिंग होता है या गैस एसिडिटी है, तो जनरली व्हाट वी थिंक कि अच्छा जीरा ले लेंगे तो हो जाएगा ठीक, है ना। या तो ये इट इज मोर ऐसे लेते हैं कि नॉर्मल गैस्ट्रिक इशू है रादर देन इट इज आईबीएस। तो going to the doctor and understanding about this is very important that we lack, जो most of the Indians नहीं करते हैं, which is a very good point. You also spoke about कि आपका diet जो था ये किस तरीके से था एंड हाउ यू वर एबल टू मैनेज इट, बट यू स्पोक अबाउट फिजिकल एक्टिविटी जो बहुत ही प्रॉपर पॉइंट है, वेर इन फिजिकल एक्टिविटी इज वन थिंग जो मैक्सिमम लोग जनरली नहीं कर रहे होते हैं until and unless they care about their health, वो physical activity is something that they lack. So that's a really good point कि physical activity be it walking और meditation दोनों ही आपको physically and mentally दोनों ठीक रखेगा, which is good. अबाउट नॉलेज दैट यू स्पोक, यस कि वो नॉलेज होना जरूरी है कि आईबीएस क्या है, किस तरीके का है, एंड व्हाट काइंड ऑफ आईबीएस यू हैव। बट अभी व्हेन वी टॉक अबाउट डाइट, कैन यू टेल मी कि ये जर्नी जो था आपका वीक 1 से लेके अब तक, हाउ वाज द डाइट फॉर यू, वाज इट फ्लेक्सिबल फॉर यू, या फिर आपको चैलेंजेस, ऑब्वियसली आई एम श्योर कि वीक 1 में काफी चैलेंजेस आए होंगे आपको, बट आपने वो कैसे ओवरकम किया? लास्ट वीक आप सस्टेनेंस में हो तो आपकी ट्रिगर पता चले, हाउ डिड यू डू दैट इन द एंटायर 14 वीक्स? Okay. First of all, I want to say one thing that I don't have any diet chart at first, but after talking with Pritha ma'am, she said me what things to do. तो जब मुझे पता चला कि अब मुझे ये करना है, मुझे क्या क्या छोड़ना है, जैसे कि एक चीज, जैसे कि एक होता है कि हाई फॉडमैप और एक लो फॉडमैप। तो जिसको आईबीएस का प्रॉब्लम है उसको तो पहले हाई फॉडमैप और लो फॉडमैप की फर्क पता होना चाहिए कि क्या है। मैं आपको बहुत इजीली बताना चाहता हूँ कि मुझे जितना समझ में आया कि लो फॉर्मेट जो फूड्स होता है वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है आपके, क्योंकि आईबीएस जिसको प्रॉब्लम है उसका डाइजेशन होने में टाइम लगता है, क्योंकि आपके अंदर से ही आपको थोड़ा वीकनेस है। तो आपको लो फॉर्मेट खाना ज्यादा लेना चाहिए जिसमें फाइबर बहुत ज्यादा हो। अगर आप फाइबर जैसे खाना ले रहे हो तो आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल होता है, किसी भी इंसान के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सिर्फ आईबीएस वाला स्टूडेंट पर्सन के लिए नहीं, किसी भी अगर पर्सन है, whoever it is, he or he has to take fiber in our or his diet every day, because fiber is very important for us. Even who are patients of diabetes, they also need to take fiber. So if you have idea about low format or high format, then you should go for low format. तो मैंने वही किया, मैंने लो फॉर्मेट जो खाना है वो लेना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे जो मेरा, जब मेरा सब कुछ सही होने लगा, मेरे को जब जो मेरा अंदर का जो चीज है, मतलब बेसिकली जो मेरा डाइजेशन वीक था वो धीरे 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 इम्प्रूव होना स्टार्ट हुआ। जैसे कि मैं हर दिन सुबह उठ के कुछ ना कुछ पीता हूँ, जैसे कि क्लोव वाटर हो गया, या फिर जीरा वाटर, कोई भी जो जो मुझे मैम ने सजेस्ट किया है, क्या है, वो मैं लेता हूँ। उससे क्या होता है कि आपका जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है वो बहुत हेल्प करता है आपको। आपको वो अब मुझे लगता है एक चीज कि अगर आप इंसान इंसान कुछ भी कर सकता है, तो अगर आपको मतलब ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता तो आप नहीं करोगे। पर मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगा था कि नहीं, आई नीड टू चेंज माई इंटर लाइफ। अगर मैं अभी कुछ दिन के लिए इस चीज को मैं छोड़ सकता हूँ जो मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो इट इट विल
बेटर फॉर मी इन फॉर माई फ्यूचर, क्योंकि मैं बाहर जाने वाला हूँ। अगर मुझे जब जॉब होगा, कुछ होगा, या फिर क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो तब मुझे बहुत हेल्प होगा। तो मैंने अपना जो डाइट को पूरा चेंज किया, जैसे कि मैम ने बताया कि आपको ऐसा ऐसा ये लेना है। सबसे बड़ा चीज है कि आपको एम्प्टी स्टोमक नहीं रहना है, क्योंकि जब आप एम्प्टी स्टोमक रहते हो, आपका जो अंदर लिवर में जो एसिडिटी फॉर्म होता है, वो ट्रू। सबसे खराब चीज है। राइट। तो वो आपको नहीं करना है। आपको एक गैप में आपको खाना लेना है, जैसे कि 2.5 घंटा या 3 घंटे के अंदर से खाना लें, कुछ भी लो आप। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि हर वक्त आपको हार्ड खाना लेना है। आपको राइट। लाइट खाना भी चलता है, कोई बात नहीं। और मेरे लिए, क्योंकि राइस मेरे लिए ओके था, तो मैं राइस लेता था, ओट्स खाता था, जो बहुत अच्छा एक फूड है। ओट्स आई थिंक फाइबर से भरपूर है, उसके साथ चिया सीड्स, जिसमें बहुत सारा अच्छा अच्छा चीजें हैं। तो वो चीज, उसके साथ जो आलमंड्स हो गया, वॉलनट हो गया, ये सब चीज रहता था। और मैं एक ना चीज बोलता था कि जो भी आप खाना खा रहे हो, उसको टाइम लेके खाओ, मतलब जल्दी में मत खाओ, क्योंकि च्यू करना एब्सोल्युटली। बहुत जरूरी है। कुछ भी खाना खा रहे हो, उसको एंजॉय करके खाओ। ये मुझे बताया था सिटी मैम ने, मेरे वेलनेस कोच की, एंजॉय करो खाना को। अब जब खाना खाओगे, उसका टेस्ट को एंजॉय करो, सबको एंजॉय करो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको, जैसे आपका कोचेस बोल रहे कि वो लोग कोच है, दे आर एक्सपर्ट, तो यू नीड टू फोकस ऑन देयर सजेशन। बस मैंने वही फॉलो बहुत किया, अच्छा। मैंने जस्ट रियली। वही फॉलो किया। हम्म। मैं और कुछ नहीं किया। हाँ, एक चीज ऑनेस्टली मैं बताना चाहता हूँ कि हर चीज फॉलो करना पॉसिबल किसी के लिए नहीं है, पर जितना हो सकता है, इफ यू ट्राई योर बेस्ट, देन आई थिंक यू विल गेट द गुड रिजल्ट, यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। जो मैं वेरी ट्रू। मुझे अगर मुझे 64 मेरा जो रिजल्ट है, उससे अगर मैं अभी 86 में आया हूँ, तो फिर मेरे इंप्रूव हुआ है। और मैं देख पा रहा हूँ, मेरे अभी जो चीज मैं बंद किया था, पूरा बदल लेता हूँ अभी। व्हीट, जो मतलब रोटी है व्हीट, वो मैं लेता हूँ, क्योंकि वो मैं कभी कब लेता हूँ, सुबह ब्रेकफास्ट में या लंच पे लेता हूँ, डिनर पे ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे डिनर पे वो लेने से मेरे को प्रॉब्लम हुआ है। और मैं एक चीज खुद करता था कि मैं मैम को बोल के, कि मैं पीता मैम को बोल के कि मैं मैम, आई वांट टू ट्राई दिस, ओके। तो मैम को ओके, बट इफ समथिंग हैपन बैड, देन प्लीज मुझे बताना कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो सब कुछ चीजें जो है, मतलब ऐसा हो गया है कि अभी फेमिलियर हो गया हूँ बहुत ज्यादा। तो कुछ भी होता है प्रॉब्लम, मैं पिता मैम को या फिर सिद्धि मैम को बोलता रहता हूँ कि मैम ये हुआ है, ये हुआ है। तो कभी कभी आपको चीज छोड़ना पड़ेगा, उस टाइम के लिए छोड़ो, ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ टाइम के लिए छोड़ना पड़ रहा है। हाँ, अगर छोड़ना पड़ रहा है तो किस टाइम पे खाने के बाद आपको कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है, ये जानने में भी जरूरत है। तो आप, एब्सोल्युटली ट्रू। और तो एक आपने चीज, जो, हाँ। और आप, आई जस्ट वांट टू ऐड वन हाँ। मोर सेंटेंस। हर राइट। इंसान का बॉडी अलग अलग है। वो कुछ खा रहा है, मतलब वो भी आपको सूट करेगा, ये मतलब नहीं। आप अपना बॉडी को समझो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट। सो आपने बताया जो आप ले रहे थे एंड ऑल ऑफ दैट विच इज रियली गुड, क्योंकि आप जो बता रहे हैं, जिस हिसाब से बता रहे हैं कि इससे पता चल रहा है कि आपका डेडिकेशन कितना था टुवर्ड्स द डाइट प्लान, टुवर्ड्स द एंटायर ऐप। तो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जितना कोचेस के साथ कनेक्ट करते हैं, जितना आप कोचेस के को बताते हैं कि आप क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं, जितना आप जो एक्टिव रहना होता है बेसिकली ऐप पे वाया द चैट बॉक्स, लॉगिंग योर मील्स या जो भी चीजें हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हमें भी पता चले और हम भी स्टडी कर पाए आपका लाइफस्टाइल एंड अकॉर्डिंगली हम वो चेंजेस आपको बता सके विच इज बेनिफिशियल फॉर यू। जब तक वो टू वे कॉन्वर्सेशन नहीं होता है, तब तक इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस ऑल्सो टू अंडरस्टैंड, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। आपने बताया कि आप पूरे दिन में क्या सारा ले रहे थे एंड हाउ यू चेंज्ड योर लाइफ बाय फॉलोइंग ऑल दिस, विच इज रियली ग्रेट। तो ऐसा कुछ है कि आपके 5 फेवरेट फूड थे जो आपको छोड़ना पड़ा, बट नाउ दैट यू नो कि आपके ट्रिगर कौन से हैं, तो आपने वो मे बी एक आध दो ऐड किए, क्योंकि आपने बताया जैसे बाहर जाते हैं तो कभी कभी डिफिकल्ट होता है कि हर बार इतना रेस्ट्रिक्टिव डाइट नहीं फॉलो कर पाते हैं, विच इज एब्सोल्युटली ओके एंड अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस है, विच इज फाइन। तो आपने किस तरीके से वो सोशल लाइफ आपका मैनेज किया, या आपने कौन सी चीजें जो छोड़ दी थी वो वापस लेना स्टार्ट किया आपने? ओके, when I go for we go with my friends in a restaurant or any other place, I just ordered those things which is suitable for me. First of all, my favorite food is pulao, sweet pulao. Okay,
So and pulao is rice based, so I don't need to give up with this. So this is very good for me that मुझे पुलाव छोड़ना नहीं पड़ा। तो हाँ, क्या करता था मैं, जब कुछ चिकन का आइटम ले रहा हूँ या पनीर का कुछ आइटम ले रहा हूँ, क्योंकि पनीर मेरे लिए रेस्ट्रिक्टेड था पहले, राइट। अभी थोड़ा बहुत लेता हूँ, पर बहुत कम क्वांटिटी में, क्योंकि अभी मैं समझ चुका हूँ खुद भी कि कितना मुझे लेना है, कब मुझे ट्रिगर हो रहा है, ये आप समझ जाओगे, क्योंकि अपना एक्सपर्ट कोचेस है, तो वो आपको जैसे बताएंगे उसके हिसाब से आप खुद भी समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप बहुत छोटा हो तब अलग बात है, क्योंकि आई थिंक आई एम मैच्योर एनफ कि वो समझ में आ जाएगा आपको कि आपको क्या लेना है नहीं लेना है, क्योंकि मैं बहुत दिन से उसको से मतलब लड़ाई कर रहा हूँ मैं, मुझे पता है कि ये चीज मेरे लिए क्या है। तो अगर मैं आपको बेस्ट थाई फूड पता, तो उसमें मैं चिली चिकन वगैरह जो होता है, जैसे चाइनीज फूड होता है, उसको मुझे राइट। छोड़ना पड़ा था, पर आई जस्ट टू द चिकन आई एंड डोंट टूक आई डिडंट टूक द ग्रेवी। तो इन हम्म। दिस वे दैट इज, आपको लेना है तो कोई कोई बात नहीं, आप लो, पर उतना लो जितना आपके लिए सही है, और जिसको अवॉइड करना है उसको अवॉइड करो बस। आपको कुछ एब्सोल्युटली ट्रू। ऐसी बात नहीं है कि आपको पूरा चीज छोड़ना है, क्योंकि मैम ने कभी मुझे बताया नहीं कि आपको पूरा छोड़ना है, जो चीज छोड़ना है वो आपके लिए सही होगा ऑब्वियसली। हम्म। को समझना है कि मैम बता रहे हैं मतलब सही में कुछ ना कुछ होगा। तो बस मैं सिर्फ उन सब चीजों को फोकस करके मैं मैनेज करता था डाइट को, कि हाँ मैं अगर बाहर जा रहा हूँ तो मुझे क्या खाना है। मुझे सो अगर ट्रू। पुलाव खाना है तो उसके साथ मुझे जो लेना है, तो उससे ग्रेवी नहीं खाना है, मुझे उसका हम्म। चिकन या पनीर जो भी ले रहा हूँ उसको ले लेना है। उसी में राइट। से मेरा काम चला जाता है। और मैंने आपको जो बताया कि मेरे लिए जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट था कि मैं पुलाव बहुत पसंद करता हूँ, और मेरे लिए वो रेस्ट्रिक्शन में नहीं था। सो तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी और अंडरस्टैंडिंग कि आपको क्या सूट हो रहा है, क्या आप टॉलरेट कर पा रहे हो, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप बाहर जाए या घर पे भी आपको डाइट किस तरीके से मैनेज करना है ये समझ में आता है। दैट्स अ रियली गुड। क्यों आपने काफी सारे ऐसे पॉइंट्स बताए हैं आज विच आर रियली गुड, कि ये सारी चीजें करने से आपको डेफिनेटली ये लाइफस्टाइल चेंज हो गया, आपका फिजिकल एक्टिविटी हो गया, स्ट्रेस रिडक्शन हो गया, ये सारी चीजों की वजह से आईबीएस मैनेजेबल है। एब्सोल्युटली ट्रू। नाउ हम्म, अभी वी हैव 5 or 8 more minutes टू गो फॉर द वेबिनार। अगर कोई क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द ऑडियंस दे कैन डेफिनेटली ड्रॉप इट इन द चैट बॉक्स, तो हम वो सारे क्वेश्चंस ले सकेंगे। बट मीनवाइल आप ये बताइए कि अगर ऐसा वेलनेस पार्ट या फिर न्यूट्रिशन पार्ट में से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि आई एम श्योर कि ऐसा कुछ ना कुछ होगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प किया होगा, एंड दैट वुड बी समथिंग दैट यू वुड वांट टू कैरी एंड कंटिन्यू। तो ऐसी या कौन सी चीजें हैं जो आप बाद में भी आफ्टर द प्लान ऑल्सो जो आप कंटिन्यू करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिटॉक्स वाटर बहुत बेनिफिशियल है, सबको लेना चाहिए। सेकंड, ब्रेकफास्ट में थोड़ा भारी कुछ खाना है तो खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लंच में भी खा लो। पर जो डिनर कर रहे हो वो लाइट होना बहुत जरूरी है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मैं ओट्स ले सकता हूँ, मैं चावल खा सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। एंड जो वेलनेस कोच की तरफ से है कि मेडिटेशन करना, कुछ टेक्निक्स है जो आपको मैं एक चीज बोलना भूल गया, आई नीड टू मेंशन दिस। ऐप बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है, जिसके थ्रू आप बहुत कुछ आपको मिलता है। तो आई ऑल्सो थैंक टू दैट ऐप, कि उसके वजह से मेरे को बहुत हेल्प मिला है। तो वेलनेस कोच की तरफ से जो भी मुझे बताया गया कि मेडिटेशन वगैरह, क्योंकि मेरे एंगर इश्यूज भी था, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान हूँ, मतलब क्योंकि मेरे को जो दिक्कत होता था वो मेरे मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता था, उसकी वजह से मेरा जो एंग्जाइटी और एंगर इश्यूज आता था मुझे बहुत ज्यादा। आई डोंट वांट टू शेयर एवरीथिंग, बट ये कुछ चीजें पर्सनल है। पर तो ये सब चीज अगर आप लाइफ लॉन्ग करोगे, कि मुझे करना है, क्योंकि डिटॉक्स वाटर आपको बहुत हेल्प करता है। उसके बाद ब्लैक कॉफी बहुत बेनिफिशियल है विदाउट शुगर। आपको जितना आप चाहो, आप शुगर आप जितना अवॉइड कर सकते हो उतना करो, क्योंकि शुगर इज नॉट गुड फॉर अस, नॉट फॉर गुड, नॉट एट ऑल। तो आपको शुगर अवॉइड करना है, जो चीज खा रहे हो आप सोच समझ के खाओ कि अगर वो आपके लिए सही है नहीं है। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप मतलब थोड़ा ट्राई करो कि ऑल्टरनेटिव ऑप्शन अगर नहीं भी मिल रहा है, तो आप जो भी खा रहे हो थोड़ा कम, मतलब कम से कम खाओ। मान लीजिए कि अगर किसी इंसान को रोटी से प्रॉब्लम है, ग्लूटेन बेसिकली उससे प्रॉब्लम है, तो आप उसको, अगर आप 3 खा सकते हो रोटी, तो उसके जगह पे 2 खाओ या 2 खाओ, थोड़ा कम करके खाओ। उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आप कभी भी खाना खा रहे हो
तब आप थोड़ा कम करके खाना खाओ। ऐसे नहीं कि आप गला तक खा लिए बस, ऐसा नहीं करना है। जब भी खाना खा रहे हो थोड़ा कम करके खाओ। मान लीजिए कि आपका 100% कैपेसिटी है, तो 100% नहीं, 70 to 8%, 80% खाओ। बस इतना ही Right. बोलना है मुझे। True. So और thank you so much. एक्सरसाइज करो। Hmm. एक्सरसाइज डेली करना है, एक्सरसाइज डेली करना है, कोई भी काइंड, एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज। राइट, आई थिंक आपने काफी सारी चीजें समराइज कर दी एक ही इसमें, एंड जो फॉलो करना चाहिए विच इज इम्पोर्टेंट टू मैनेज आईबीएस, वो सारा ही आपने एक इसमें बता दिया। एंड आई एम श्योर कि ये आप कंटिन्यू करेंगे तो जो सिम्टम्स हैं विल ऑब्वियसली बी एट अ डिस्टेंट, आपके सिम्टम्स ट्रिगर जो होता है या सिवियरिटी ऑफ जो सिम्टम्स हैं ये ज्यादा नहीं रहेंगे, क्योंकि यू नो योर बॉडी एंड यू नो कि अभी आप क्या ले सकते हो, क्या आपको नहीं लेना है। सो वील जस्ट स्टार्ट विथ क्वेश्चंस जो भी हैं। तो आर्घा जी ने आपको पूछा है कि विच फूड इज नाउ रेस्ट्रिक्टेड फॉर यू। ऐसा कोई खाना जो पता चला आपको कि आपका ट्रिगर है, ऐसा कुछ है अभी? I need to stop few foods, but not totally. I can take those foods partially, like one fourth or half in this way. But I don't have any restriction. But yes, I need to take that much which is suitable for me. That's all. Right. So, Arga, to also answer your question, basically, जब हम IBS diet follow करते हैं, there's nothing which has to be restricted absolutely. Yeah. Once we know about your trigger reintroduction के बाद, we'll understand what food are your triggers in with specific quantity. So, just knowing that quantity is important. For some, it could be कि कोई एक food absolutely trigger है इसीलिए नहीं लेना चाहिए. For some, it could be कोई भी फूड ट्रिगर नहीं है पर लाइफस्टाइल इनकरेक्ट था, वाटर इनटेक सही नहीं था, फिजिकल एक्टिविटी सही नहीं था, दैट्स द रीजन व्हाई। सो दैट रेस्ट्रिक्शन डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट। किसी के लिए फुल पोर्शन इज ओके, किसी के लिए हाफ पोर्शन, या किसी के लिए बिल्कुल नहीं लेना इज मोर बेनिफिशियल। So that is absolutely dependent on the patient. There's just one more question and I think we'll wrap it up because we are towards the end of our webinar. मोहा जी ने पूछा है कि आपने मेडिसिन कब, व्हेन डिड यू लीव मेडिसिन आफ्टर स्टार्टिंग द प्रोग्राम? I don't leave the medicine. I am taking medicine because my doctor said to take those medicine up 6 months, and 6 months 6 months are not completed till now. So I am taking medicines, but with taking medicine you need to follow whatever your coaches say to you. This is very important because not only medicine will not help you. You need to change your lifestyle. This is very important. You need to change your diet. You need to change your you need to do some physical workouts. This is very important. After you visit after I visit my next schedule, I think whatever doctor will say to me, I will follow this because I am not a doctor, so I can't stop them suddenly. Right. So medication definitely as per the doctor, but like he said, ki medication cannot be the only solution. Along with that, lifestyle changes is important because medication for a long run is also not good for your health. But obviously, taking medication as per what the doctor has suggested is utmost important because they are the expert and they'll give you correct advice. And along with that, lifestyle, water, food, physical activity, stress, managing all of them is also equally important. So thank you, Mr. Ararka, कि आप यहाँ आए and you were able to tell us about your beautiful journey, and काफी dedication से आपने ये follow किया, and it was superb to see कि आपका जो change था, it was absolutely commendable. So thank you so much for joining us today and telling us about your journey. Thank you. Thank Thank you, you, ma'am. Thank you so participants. much. Thank you, participants, for joining. We'll be having our another webinar on next Saturday. Make sure that you join the next webinar as well. Thank you, everybody. Thank you so much. Thank you, everyone.